ہوشانہ ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ناظرین، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام کمپین فار کرائسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق۔ تو بتاتا چلوں کہ ہوشانہ ٹی وی کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ بائبل مقدس کے گہرے بھید اور مکاشفات آپ تک پہنچائے تاکہ آپ کی انفرادی، اجتماعی، خاندانی اور کلیسی زندگی ترقی کرے۔ تو آج پھر ایک انتہائی اہم اور ضروری مضمون پر جو ہے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جو کہ معقول عبادت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تعلق سے کوئی بھی بات کریں، آج جن خدا کے خادموں نے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ اس حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں، میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف کراتا چلوں۔ تو آج کے ہمارے جو پہلے مہمان ہیں جناب پاسٹر نثار صاحب ہیں، ان کا تعلق دی بائبل چرچ اکاڑا سے ہے۔ پادری صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے جو اگلے آج کے مہمان ہیں جناب پاسٹر وارث انور صاحب، ان کا تعلق ایف جی چرچ لاہور سے ہے، اور یہ بھی خدا کے کلام کی روشنی میں اس آیت کے حوالے سے ہمیں سکھائیں گے۔ تو پادری صاحب، میں آپ کو پروگرام میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان جناب پاسٹر سعید فرزان، جن کا تعلق دی بائبل چرچ لاہور سے ہے، اور یہ بھی خدا کے کلام کی روشنی میں ہمیں معقول عبادت کے تعلق سے سکھائیں گے۔ تو پادری صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے اگلے مہمان جناب پاسٹر سرفراز صاحب ہیں، جن کا تعلق ایف جی چرچ اکاڑا سے ہے، اور یہ بھی خدا کے کلام کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو سکھائیں گے کہ معقول عبادت کیا ہوتی ہے۔ تھینک یو سر۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی دلچسپ ہے، اور بہت سارے سوالات اس کے تعلق سے اٹھائے جاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح عبادت کرنا چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں میں اپنی ادائیگی کس کو دوں۔ تو ان سارے سوالات کے جو جوابات ہیں آج ہم خدا ہم سے سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آئیے آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے رومیو کے نام خط اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 2 آیات ہم تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا پاسٹر سرفراز صاحب سے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کی 12 باب اور پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم دعا کریں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ پاسٹر سعید فرزان صاحب دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے دعا کریں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی ازلی ابدی آسمانی باپ، قادر مطلق خداوند یہوہ یری، بادشاہوں کے بادشاہ طبیب اعظم، میں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر اے خداوند اس ساری جماعت کو، تیرے لوگوں کو، اور اے خداوند ان لوگوں کو جنہوں نے اے خداوند ہوشانہ ٹی وی کا آغاز کیا ہے، تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، سبوں کو بڑی برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، اور ہم لوگ جو تیرے خادم ہیں اے خداوند ہم پر اپنا کرم والا فضل والا ہاتھ بڑھائے رکھنا، تاکہ تیرے زندہ کلام کو اے خداوند اچھی طرح سے بیان کر سکے، اور اے خداوند تیرے پاک روح کے وسیلہ سے اے خداوند ہم یہ سکھا سکے کہ مقبول عبادت کیا ہے۔ تو بڑی رہنمائی کرنا، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تو ناظرین، جب سے یہ دنیا بنی ہے، خصوصاً خدا نے آدم کو تخلیق کیا، تب سے عبادت کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان خدا سے گمراہ ہو گیا اور بتوں کی پرستش کرنے لگا، تو بھی عبادت کسی نہ کسی شکل میں جو ہے جاری رہی ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور مسیحیت میں بھی
पिछले 2000 साल से ये सिलसिला जारी है और खुदाम के फजल से ये हमेशा चलता रहेगा। तो मसीही माकूल इबादत क्या होती है, इस हवाले से खुदा के कलाम की रोशनी में हमें सिखाएंगे कि एक मसीही को किस तरह माकूल इबादत करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं दावत दूंगा, आज के हमारे पहले मेहमान जनाब पास्टर निसार साहिब हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के कलाम की रोशनी में हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि माकूल इबादत क्या है। जी पादरी साहब। जी शुक्रिया सर। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें मौका दिया कि हम होशाना टीवी पर आकर खुदावंद के कलाम को बयान कर सकें। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिस तरह हमने अलबिया अदारा से सैमरी की और आज खुदा ने इसी अदारा में इस चैनल का आगाज़ किया है, तो हमें ये मौका मिला कि हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। तो आइए हम कलाम खुदा के लिए बढ़ते हैं कि जिस तरह बहुत खूबसूरत भाई साहब ने बयान किया कि बहुत जब इब्तदा से दुनिया में खुदा की इबादत करना हम देखते हैं कि इंसान कर रहा था, तो उसमें से इंसान तरह बतरा जो है वो इबादत करता रहा। और आज हम देखते हैं इस हवाला में पौलुस रसूल ने जब रोमियो को लोगों को ये ख़त लिखा और उनको बताया, जब हम पौलुस की ज़िंदगी को देखते हैं कि वो खुदा को मानता था और कट्टर यहूदी था, और जब हम देखते हैं कि वो मसीहियों के ख़िलाफ़ था, जो मसीह को मानने वाले थे उनको वो मारता और उनको कत्ल करता और खींच कर वो कैद खानों में डाल देता था। और जब हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में जब खुदा यीशु मसीह दमिश्क की राह पर उसको मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर वो दोबारा जब मसीह में आ जाता है तो उसकी मकबूल इबादत होना शुरू हो जाती है। जब वो मसीह को पा लेता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करके वही ज़िंदगी जो मसीहों को कत्ल करती मारती थी, फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर इस्तेमाल होने लगी और मसीहों को बचाने के लिए उनको मसीह के पास लाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने अपनी ज़िंदगी को एक मकबूल इबादत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, वक़्फ़ कर दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी को मसीह के लिए कर दिया, ताकि वो बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लाए और उनकी इबादत के वसीला से वो मकबूल इबादत में आकर मसीह को नजात दहिंदा कबूल कर सकें। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाले हमें मिलते हैं, तो लेकिन जब हम दानियल की ज़िंदगी को देखते हैं कि पूरे शहर में जब बादशाह ने हुक्म दे दिया, तो उसने जब हम उसकी कहानी को जानते हैं कि किस तरह से उसने अपने जिंदा खुदा को मानना और उसकी मकबूल इबादत में ठहरा रहा, और पूरा शहर उसके खिलाफ था लेकिन उसका ईमान जो था वो अपने खुदा पर था। और लोगों ने उसको बादशाह ने हुक्म देकर और शेरों की गार में भी फेंका, तो हम देखते हैं कि खुदा ने वहाँ पर भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे बचाया। तो ये थी मकबूल उसकी इबादत। जब हम खुदा जिंदा के पास जाते हैं, जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, तो खुदा हमें शेरों की गारों से निकालने की कुदरत रखता है, आग की भट्टियों से निकालने की कुदरत रखता है, मुसीबत से निकाल देता है। और उस वक्त होता है जब हम उसकी मकबूल इबादत में ठहरते हैं। बहुत सारे लोग उस रोमियो लोगों की तरह आज भी हम देखते हैं कि चर्चों में आते हैं, खुदावंद का नाम लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो है वो पूरे मकबूल इबादत के तरीका से हम बहुत कम लोगों को देखते हैं। मसीह से आज भी वैसे ही रोमी लोगों की तरह दूर हैं लोग, क्योंकि आज भी हमें ज़रूरत है खादमों को कि हम लोगों को बताएं कि हमारी मकबूल इबादत जो है वो खुदावंद में किस तरह से है, हमने किस तरह से अपने आप को खुदा के आगे पेश करना है। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं, तो हमें सबसे पहली बात जो है खुदा मोहब्बत है, मसीह मोहब्बत है, रूह कुद्दस मोहब्बत है। हम इनको अपनी ज़िंदगी में जब लेंगे तो हम मकबूल इबादत में अपना कदम रखना शुरू कर देंगे, मकबूल इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। जब हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत आ जाएगी। यानी आपके ख्याल में लोग इबादत तो करते हैं, हाँ जी, इबादत का तस्वर ख़त्म नहीं है, जारी सारी है, जारी सारी है, लेकिन जो इसके जुजियात हैं जैसे आप बयान कर रहे हैं कि मोहब्बत और ये पूरा नहीं करते, ये पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जो इबादत के असूल हैं, मकबूल इबादत के होने चाहिए, वो हमारी जिंदगियों से दूर हो चुके हैं। बहुत सारे हम नामी मसीही हैं, बहुत सारे हम चर्चेज में देखते हैं, एक दूसरे के दिखावे के लिए हम आते हैं, लेकिन खुदावन के लिए बहुत कम लोग हमें नजर आते हैं। हमें चाहिए कि हमें मकबूल इबादत की तरह, उस दानियल की तरह हम देखते हैं कि खुदा का बंदा किस तरह वो दलेरी से कहता है कि मैं अपने जिंदा खुदा के लिए उसकी इबादत करूंगा। और हम देखते हैं कि इसी तरह हमें भी चाहिए कि आज हम भी अपने खुदा के लिए दलेरी से अपनी मकबूल इबादत के लिए ठहरें, हम लोगों की परवाह ना करें, हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे कर दें, इस दुनियावी ख्वाहिशों को छोड़कर
अपनी ज़िंदगी ज़रूरियात को छोड़कर मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, जो मसीह हमसे चाहता है, ताकि हम अब मसीह में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो बहुत सारे लोग आज भी हम देखते हैं कि मसीह से दूर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग आज भी मसीह से बहुत दूर हैं। भाई साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में हम जाते हैं, लोग इबादत तो करते हैं, लेकिन जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं, मैं अक्सर चर्च में सवाल करता हूँ, पिछले संडे जो मैंने मैसेज दिया था वो कौन सा था? बहुत सारे लोगों में से एक आधी वो बेटी या बहन जो है हाथ उठाती है, कहती है भाई साहब आपने ये पैगाम दिया था। तो मैं ये कहता हूँ कि हर संडे आप एक कलाम की आयत जो पैगाम होता है वही याद रखें, तो आपकी मकबूल इबादत में आप शामिल होंगे, खुदा के साथ चलते रहेंगे। आपको पूरा हफ्ता जो है वो आयत आपके ज़हन में गर्दिश करेगी, आपकी ज़िंदगी में काम करेगी, आप उस आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बल्कि ये बड़ा अलमिया है, देखने में आ रहा है, हम भी देख रहे हैं जी सर कि आप एक संडे पुरजोश अंदाज में कलाम सिखाते हैं, जी सर बिल्कुल। अगले संडे आप कहते भी हाथ खड़ा करें तो एक आध हाथ ही खड़ा होता है जी। बहुत सारे लोग जो ऐसे नामी आते हैं, जिस तरह आज आपने ये बहुत अच्छा पैगाम जो अच्छा रखा हुआ है कि हम मकबूल इबादत के लिए जगह हर लोग, जितने लोग जो चर्च में आते हैं वो अपने पूरे दिल से ईमान से जब आएँ, खुदा के जिंदा कलाम को सुने और उस पर अपने पूरी तवज्जो के साथ वो कलाम के बेज गहरे बेज जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में लें, तो मेरा ख्याल है कि पूरी मसीहत जो है वो खुदावंद में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ होंगी। हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियों में ये आते जो हम सुनकर जाते हैं चर्च से, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने घर में जाकर उसकी हम जब एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे कलाम की कि आज हमने संडे में ये सुना है, तो वो हमारे घर में भी वो बरकत आएगी और उस बरकत को हम लेकर खुदावंद के आगे, उस बरकत को लेकर हम पूरा ख़ानदान जो है वो निजात में जाएंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि रोमी के लोगों को आज भी हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मसीह से दूर है। हमें चाहिए कि जिस तरह कलाम खुदा में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो अपने आप को खुदा के लिए उन्होंने अपने कुर्बान किया। बहुत सारे हम देखते हैं कि हमारे रसूल जो थे उन्होंने अपने जाने कुर्बान कर दी ताकि वो मसीहत को कायम कर सकें। तो हमारे आज खादम और हमारे मसीह लोग जो हैं उनको भी चाहिए ताकि वो मसीह के लिए अपनी मकबूल इबादत को कायम करें, ताकि हर आने वाली नस्लें जो हैं वो मसीह इबादत में कायम हो सकें और आगे बढ़ सकें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया जी पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जिस जोश और जज्बे के साथ आपने ये पैगाम डिलीवर किया है, मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे नाज़रीन यकीनन जानेंगे कि माकूल इबादत क्या होती है। तो नाज़रीन, खुदा के खादम ने बाइबल मुक़द्दस में से वो हवाले कोड किए, दानियल नबी का हवाला दिया जो दिलो जान से खुदा से मोहब्बत रखता था। एक वक्त में सारे जज्बात, सदाकत, सच्चाई और जो रसूल ने यहाँ पे डिमांड लिखी है वो कदीम ज़माने में, अहद अतीक में हमें नज़र आती है। तो ये थी माकूली बात जो पादरी साहब ने बयान की। सिलसिला जारी रहेगा। आगे मैं दावत दूँगा जनाब पास्टर अनवर साहिब को कि आज हमारे नाज़रीन को ये बताएं माकूल इबादत क्या होती है। जी पादरी साहब। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल ने ये ख़त जब लिखा तो ये गालबन सन 56 की बात है। जी। उसने बारहा अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश रखी कि मैं रोम जाऊं, लेकिन वो ना जा सका। लेकिन ये ख़त उसने एक औरत के ज़रिए जो उस वक़्त एक ताजर थी, वहाँ कलीसिया ऑलरेडी कायम थी कलीसिया बन चुकी, लेकिन अपना अपना तरीका सलीका जो इबादत था ना वो अलग था। लेकिन खुदा का बंदा यहाँ पे बड़ी पुरजोश अपील कर रहा है कि मैं तुझे खुदा की रहमतें याद दिलाकर कि उसने कौन कौन से काम आपकी ज़िंदगी के लिए किए हैं। जी बिल्कुल। और आप दुनियादारी के धंधों में ना फंसो, बल्कि खुदा के ऐसे कामों में शरीक हो जिससे खुदा की मुकम्मल और पुर शफीक मोहब्बत को हम हासिल कर सकें। और इबादत असल में खुदा की तज़ीम करना है। खुदा नहीं चाहता कि इंसान को ज़बरदस्ती अपने चरणों में झुकाए या अपने सामने सजदा करवाए। जी बिल्कुल। वो खुद मुख्तारी का तस्वर है ना मसीहत में, जी, कि लूसीफर को भी खुदा ने खुद मुख्तारी दी, फिर आदम को भी दी,
जी खुदा चाह तो उसका हाथ पकड़ सकता था, हाँ जी, तो ये जी जारी रखिए। उसने आज़ाद मर्जी पर इंसान को पैदा किया है। जी। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि राहें तो बहुत सारी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, सीधी मालूम होती है। लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जी बिल्कुल। लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत आए और खुदा के सामने झुककर उसको सजदा करें और अपने पूरे ईमान, दिल से, जान से, ताकत से और दनाई से उसकी इबादत करें। ये एक मकबूल इबादत का एक हिस्सा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़माना कदीम के अंदर पुराने अहद नामे में लोगों को मुश्किलात होती थी, कुर्बानियाँ के लिए जानवर ज़िबा किए जाते थे, गाय, भैंसे, जी जी बैल। जी जी बिल्कुल। लेकिन खुदा ने किसी गरीब को भी पीछे नहीं छोड़ा कि वो मेरी तज़ीम ही ना कर सके। वहाँ पे कबूतरों का जोड़ा भी लिखा है, कुमरिए का जोड़ा। जी जी बिल्कुल। उनकी भी कुर्बानी देकर आप खुदा की तज़ीम कर सकते हैं, आप उसकी इबादत कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो खुदा ने हर कैटेगरी के इंसान को अपनी इबादत के लिए तैयार किया है। जी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, या जिस रंगो नस्ल से है, वो खुदा की इबादत कर सकता है जैसे खुदा को पसंद है। तो यहाँ पे खुदा का बंदा पूरा जोर अपील करता है दूसरी आयत में, जरा फिर से मैं जी जी पढ़े। अक्स के अंदर देख- और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो इब्तदाई कलीसिया थी उनसे सीखें जी बिल्कुल बिल्कुल। कि वो सादा दिली के साथ एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जैसे खुदा के बंदा, खुदा के खादम पास्टर नसार साहब ने जी बयान आज किया। वैसे अब मैं आपकी बात को बढ़ावा देता हूँ। आज जो सबसे बड़ी कमी मोहब्बत की है, मोहब्बत की जैसे खुदा के खादम बयान कर रहे थे ना, जारी बातें जारी सारी हैं, बल्कि आज जो हमारे पास जो इबादत के जो जराए हैं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मोहब्बत एक बहुत बड़ी कमी है। जी जारी मोहब्बत की रखिए। कमी। वो सादा दिली के साथ रहते और अपने जो माल मता था या इवन के जायदादें भी फरोख्त करके बेच कर रसूलों के कदमों में रखते थे, वाह वाह वाह। और हर किसी को उसकी यानी ज़रूरत के मुताबिक देते थे। जी। तो आज एक तो हमारे अंदर कलाम मुक़द्दस में लिखा कि बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ गई है। ठंडी पड़ गई है। हमें खुदा के फरमान को भी जारी रखना है और अपनी मोहब्बत से दूसरों को इस इबादत के अंदर शरीक करना है, ताकि खुदा की पसंदीदा कौम और उम्मत हम ठहराए जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात मोहब्बत है, और मोहब्बत उस वक़्त ही इंसान करता है जब किसी से अनगिनत, बेपनाह, बेलौस, बेपरवाह होकर खुदा से मोहब्बत करे। जी जी। तो कलाम मुक़द्दस में एक शख्स आया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। जिंदगी पाओ। तो वो मालदार शख्स था, जी जी। तमाम चीज़ें उसने हदिये दिया कि ये वो सारा बताया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक चीज़ की कमी है कि अपना जो माल है वो बेचकर गरीबों को दे दे, तो तुझे आसमान पर एक खजाना मिलेगा। नहीं है, इसकी माकूली बात हो जाती हाँ है। जी। तो उसने जब ये आखिरी बात सुनी तो अपना दिल उसने पसारा, यानी कि बुरा किया। तो खुदा ने कहा कि ये इस कमी को तो दूर नहीं, क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर चाहा कि मैंने ये बरसों से इकट्ठा किया, मैं कैसे किसी को दे दूं। शुक्रिया पादी साहब, खुदा आपको और भी ज़्यादा बरकत दे थैंक यू वेरी मच। और अपने जलाल के लिए कसरत से अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, तो आमीन। नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें बताया कि रोमियो के ख़त का सोर्स क्या था, और रोम में कलीसिया बन चुकी थी। चूँकि पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाएँ कायम की, लेकिन ये बराह रास्त कलीसिया पौलुस ने कायम नहीं की थी। ताहम इबादतों के ताल्लुक से खुदा के खादिम बता रहे थे कि कुछ मुतफरक किस्म की बातें होती थी। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत और जाइए।
خداوند آپ کو برکت دے گا.